Hello, aspirants. I welcome you all to the IS mentorship. I hope you all are doing good. And this is our lecture number 6. We are doing Civics NCRT foundational course and we have completed Geography class 6. Now we are doing Civics class 6 and we are on the chapter number 6. In this lecture also we will be covering two chapters together, chapter 6 Rural Administration and chapter number 7 Urban Administration. Okay. So basically rural administration is our topic. As you all know, rural means your rural areas. Okay. अब वहाँ पे कैसी administration होती है, that is given in this chapter. Okay. So let us begin with our chapter. If you are having any query, any doubt, you can add in the comment section. We'll surely look into it. So first of all, as we try to see in the photo, और ऐसे भी अगर आप जानो तो अर्बन और रूरल दोनों का लाइफ बहुत अलग होता है. ओके. बेसिकली जो रूरल एरियाज में होते हैं दे आर मेनली एग्रेरियन. एग्रीकल्चर हुआ, फिशिंग हुआ, दीज आर ऑल देयर मेन ऑक्यूपेशंस. बट इफ़ वी टॉक अबाउट अर्बन, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ये उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है. तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपको एक विलेज के बारे में बताया गया है, दैट इज़ योर कलपट्टू विलेज. विलेज के बारे में इसलिए बताया गया है सो दैट यू कैन हैव एन इनसाइट दैट एक्चुअली हाउ विलेज people or rural people are working. Okay. So people in Kalpattu village involved in different professions such as your blacksmiths हो गए, teachers, washermen, weavers, barbers, mechanics, shopkeepers, traders. These are all the main occupations of people living in the village. There are some traders also. Okay, and what type of trade and what type of shop they are maintaining, such as tea, grocery, barber, cloth, tailor, fertilizer and seed. You will see here there is no much luxurious thing. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या सोने की दुकान नहीं मिलेगी, आपको ड्रेसेस के दुकान नहीं मिलेंगे, because people are focusing on these all things, the basic needs of the life for the survival of a human being, they are confined into this. Clear? Basically मैंने जैसे बताया कि जो रूरल पीपल होते हैं they mostly do agriculture and that is all it is written here. And what is the main crop? Paddy. Paddy is the main crop, and in this photo also you can see that they are growing paddy. Okay, they are growing paddy on the irrigated land. Clear? I hope it is clear to you. Paddy is a kharif crop grown in rainy season and harvested during the time of winter when rabi is about to get sown. ठीक है? So this is your rural kind of administration. So basically this is our IS mentorship program. You can see, you can pause the screen and you can have a look. We are providing all the things which a aspirant needs to clear this examination. And this batch is very useful. You can directly call on this number to get more idea on this. And this is your IS mentorship foundation program. The students who need mentorship from the start of their preparation, okay, they can enroll in this program. Okay. And I would like to tell you that one of our IS mentorship program is already running from 15th of the June. And you can see all the toppers photo here who have qualified civil services examination using this program only. Our guide Riyasat Ali sir will help you in all the aspect he can do to make you crack this examination. So if you want to have a Guru Shishya parampara to included in this, so you can directly connect with us. The number is given here. For more inquiry, you can call. So yes, now we have understood how people are living in the rural area. So rural livelihood, if you want to analyze more, nearly 2/5 all rural families are agricultural labor. Basically in 5, 2 parts are included in agriculture. Okay, you can say more population. They are having small plots of land while others are landless also. Some are landless also, but they are also having small plot of land, and in this plot only they are growing the crops, and from that sell of the crops they are earning.
Okay, and the people who are landless, they work on the field of large landowners to earn their living. This fact is also very important that 80% of the farmers have small sized land and only 20% of them, of the large farmers, cultivate most of the land in the villages. Okay, you should be knowing about it. Another important thing apart from farming, I have already told you what people are doing. They are engaged in forest, animal husbandry, dairy production, fishing, etc. They are also growing different crops as well. You can directly see in the picture also one lady is selling fish. So this is the life of rural people. Okay, this is the life of rural people. You should be knowing. Most small farmers, agricultural laborers, fishing families, craftsperson do not find enough work to keep them employed throughout the year. Obviously, if you are growing wheat and paddy, then you are only engaged during the rainy season because these crops are grown and harvested during that time. What else you are doing in the other part of the season? You are remaining unemployed. So during that time, it is very difficult to earn money. So what people are doing there, they are engaged in different activities. For example, when they are not engaged in this, they are engaged in fishing. They are engaged in trading. Okay, so that there is a constant source of income coming. समझ में आ रही है बात? And when in need, what they do, they borrow money from the traders and money lenders to buy seeds and fertilizers, which is being used in the agriculture. Understood? Now, this is the way how rural people are living. Now, one more. Now, coming to how the rural administration is being done. अब ये तो था हम बात की rural people रहते कैसे हैं. Now, basically, as I have already told you that farmers are having land. Okay, farmers are having land. Apart from farmers, some people are also having land in the rural areas. So now what happened? There should be a record book in which all the land and which person is owning which land there should be noted. Otherwise conflict हो जाएगा. अब मान लीजिए कि ये A है, A का land ये है और B का जो land है वो इससे सटा हुआ है ये वाला पोर्शन. ठीक है, चलो इसको बड़ा बना देते हैं. ये बी का लैंड है. अब क्या होता है, ए का मन करता है कि यार चलो थोड़ा सा लैंड मेरा बढ़ जाता तो मज़ा आ जाता. तो ए क्या करता है, ए अपना जो लैंड है वो यहाँ पे भी अपने चीज़ों को ग्रो करने लगता है. मतलब वो बी का भी एरिया को हथियाने लगता है. सो देयर शुड बी अ रिकॉर्ड बुक वेयर यू आर अपने लैंड के बारे में आप नोट वो कर रहे हो, है ना, उसको आप अपडेट कर रहे हो. तो द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लैंड रिकॉर्ड is known as your patwari. Who is patwari? Patwari is the person, okay, who maintains the record. Record of what? Land. Okay, record of land. And patwari is known as different. पटवारी को जो है अलग अलग नामों से भी जाना जाता है अलग अलग स्टेट में. सच एज योर लेखपाल. लेखपाल भी बोला जाता है पटवारी का. कानूंगो भी बोला जाता है ना. तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि हु इज़ लेखपाल, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने तो लेखपाल बताया ही नहीं था. लेखपाल इज़ नथिंग बट पटवारी ओनली. जैसे आप एक ही पर्सन हो लेकिन आपका घर का नाम कुछ और है, आपका बाहर का नाम कुछ और है. सिमिलर फैशन में एवरी स्टेट इज़ हैविंग देयर ओन नेम. अब ऐसा नहीं कि 28 के 28 स्टेट्स अपने अपने 28 नाम रख लिए, नहीं. द नेम्स आर 2-3 ही हैं, वो अलग अलग स्टेट्स में बोलते हैं. और इनको कर्मचारी भी बोला जाता है और इनको विलेज ऑफिसर भी बोला जाता है. क्लियर? सो दिस इज द थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग you should be knowing. Another important work of patwari is to organize the collection of land revenue. ओके, रिकॉर्ड तो करता ही है लैंड को, बट साथ में लैंड रेवेन्यू को भी ये इकट्ठा करते हैं. लैंड से जितने भी पैसे मिलते हैं. ओके, नाउ जो पटवारी है वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है. किससे कलेक्ट करता है? फार्मर से. ओके, और इसी लैंड रेवेन्यू का इंफॉर्मेशन किसको देता है? वो देता है गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट को क्या बताता है कि इतना लैंड रेवेन्यू मुझे मिला, और इसके साथ ये भी बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप दे आर ग्रोइंग ऑन देयर लैंड.
means this land is occupied by a person and on this land wheat is being grown in the how much acre and so on. Clear? So this is the thing you should be knowing and understood. This is one important thing. Another important thing आपको मैं बताऊंगी कि जो हमारे स्टेट है, स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होता है, राइट? स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, यू मस्ट बी नोइंग इट। और यही डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो भी सब डिवाइडेड होते हैं, ठीक है? देयर द डिस्ट्रिक्ट्स आर आल्सो सब डिवाइडेड और उनके अलग अलग नाम है, जैसे आपका तहसील हो गया, राइट? तहसील हो गया, आपका तालुका हो गया। And who is the main leader of your district? That is your district collector. अब डीसी कौन है? जो स्टेट पीएससी निकालते हैं, है ना? That is your district collector. क्लियर? और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ही अंडर पे आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं और उन्हीं रेवेन्यू ऑफिसर्स को क्या बोलते हैं? तहसीलदार बोलते हैं। मैं जितने भी बातें बोल रही हूँ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेस। आप इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज कि व्हाट इज़ योर तहसील, व्हाट इज़ योर कानूंगो एटसेट्रा. So this is the small part which has been shown that how rural administration is being worked. Okay, rural people कैसे रहते हैं पहले तो, और दूसरा चीज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली पीपल आर मोस्टली एंगेज्ड इन योर एग्रीकल्चर, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी लैंड रिकॉर्ड पे ही होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इज बीइंग डन ऑन द लैंड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द लैंड, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट विल अराइज, राइट? So this is your everything. So यही चीज़ें आपकी बुक में एनसीईआरटी में दी गई है, मैंने A to Z कवर कर दिया है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, ठीक है? चैप्टर नंबर 7 आपका है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक का बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है? दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 ऑफ सिविक्स क्लास 6। चैप्टर 6 था रूरल, चैप्टर 7 इज योर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? Now cities are quite different from villages, obviously. Why? Because क्या होता है कि अर्बन में और भी चीज़ें आपको देखने को रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जैसे आपका स्ट्रीट लाइट्स हो गया, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, मार्केट क्लीन रखना, स्कूल को रन करना, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, मेंटेनिंग गार्डन्स एट्सेट्रा. दीज आर द वर्क ऑफ योर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. अब जो बड़े सिटीज़ होते हैं उनमें एक ऑर्गेनाइजेशन होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। और जो छोटे सिटीज़ होते हैं उनमें एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल, वो इनका ध्यान रखती है। दोनों एक ही चीज़ें हैं, बट अगर आप बड़े जगह की बात करोगे तो आपका कॉरपोरेशन आएगा, छोटे जगह की बात करोगे तो आपका काउंसिल आएगा। क्लियर? तो जैसे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डोमिनेटेड बाई एग्रीकल्चर, urban is dominated by various type of thing which is being listed here, and for the big area municipal corporation, for little small area municipal council. Now basically क्या होता है, अब आपको इतना तो समझ में आ गया, ठीक है? अब जो सिटी होती है हमारी, सिटी जो है वो डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइडेड होता है। जैसे आपका स्टेट जो था वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड था, तो सिटी को है वार्ड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? सिटी आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, और इन्हीं का जो है वार्ड काउंसिलर इलेक्ट होता है। वार्ड काउंसिलर इज इलेक्टेड, ओके? वार्ड काउंसिलर इज इलेक्टेड। नाउ दिस काउंसिलर क्या करता है? दिस काउंसिलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजंस कि भाई स्ट्रीट नंबर 12 में जो है ये स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, वहाँ पे एक टैंक की कमी है, वहाँ पे प्रॉपर गार्डन नहीं है, वहाँ पे इसकी कमी है। अब इसी डिसीजंस को जो है वो कौन इम्प्लीमेंट करता है? दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय कमिश्नर, और वो कमिश्नर जो है अपॉइंट होता है, इलेक्ट नहीं होता है। इलेक्ट कौन होता है? वार्ड काउंसिलर इलेक्ट होता है। वार्ड काउंसिलर का जो डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर रहा है दैट इज योर कमिश्नर, और वो कमिश्नर जो है वो पीपल ही अपॉइंट करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? जैसे लेजिस्लेटिव बॉडीज जो हैं वो लॉ बनाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं, सिमिलरली डिसीजन लेने का काम यहाँ पे वार्ड काउंसिलर का है, और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? कमिश्नर का है। क्लियर बात? सो दिस इज योर
urban administration. No? So this is our mentorship program. I have already introduced you with all the things, perks here. This is your foundation program, okay, and this is one batch which is already running. For any queries you can call on this number to get more idea. Clear? Yeah. अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और काउंसिल का वर्क हम देखते हैं. मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन योर स्ट्रीट एंड सडनली बॉल हिट टू द स्ट्रीट लाइट एंड द स्ट्रीट लाइट ब्रोकन डाउन. अब एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप किसी के पर्सनल घर के लाइट को अगर खराब कर दोगे तो आपको उसका पैसे देना पड़ेगा. बल्ब का जितना 40-50 रुपए होगा वो पैसे देने पड़ेंगे आपको. बट नाउ व्हाट हैपन इफ यू ब्रोक सडनली द स्ट्रीट लाइट. स्ट्रीट लाइट को अगर आप तोड़ दिए तो आप किसके पास जाओगे, किससे माफ़ी मांगोगे, किसको आप पैसे दोगे? ठीक है, किसी को तो बताना पड़ेगा, अदरवाइज आप फिर फंस जाओगे. तो वो जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है. बट यहाँ पे आपको पैसे नहीं देने होते हैं क्योंकि ये सब संभालती है. द बॉडी विच इज लुकिंग आफ्टर ऑल दीज थिंग्स इज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड काउंसिल. ठीक है, यहाँ पे आपके दिया हुआ है क्या क्या चीज़ों का ध्यान देती है ये बॉडीज, वो आपको ध्यान में रखना है. नगर निगम आपने सुना भी होगा. ओके. अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पैसे कहाँ से मिलते हैं? अब जैसे आपने स्ट्रीट लाइट फोड़ दी, अब मैंने आपको बताया कि आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दैट इज़ द पब्लिक एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. वो जो है वो अपने जितने भी पैसे टैक्स वैक्स कलेक्ट कर रहे हैं पीपल से, वो उसके थ्रू वो रिपेयर कर देते हैं. बट अब पैसे कहाँ से आते हैं? अगर हमको जो है कचरा पड़ा हुआ है उसके लिए गाड़ी मंगवा के उठवाना है, या फिर स्ट्रीट का लाइट खराब हो गया उसको ठीक करवाना है, तो हाउ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गेट मनी टू डू ऑल दिस थिंग्स? तो वो जो है टैक्सेस के थ्रू करती है. टैक्सेस जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, भाई आप प्रॉपर्टी लिए हो तो आपको टैक्स बिल करना पड़ेगा. वाटर टैक्स हो गया, एजुकेशन एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, है ना. तो ये सब टैक्सेस के थ्रू जो है वो आपका काम करती है. क्लियर? ओके. यहाँ पे आपका एक पिक्चर भी दिया हुआ है, आप देखिए. पब्लिक ट्रांजिट, लोकल पुलिस, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सीवेज, लाइब्रेरी, रिक्रिएशन, अफोर्डेबल हाउसिंग. So this is the work of your municipal corporation and this is nothing but your urban administration. इसी को urban administration बोला जाता है. Clear? I hope it is clear to you. Okay, this is very easy. और इतना ही आपके क्लास 6 में भी दिया हुआ है. इससे ज़्यादा आपको अगर पढ़ना हो तो हम जब हायर क्लासेस का NCERT करेंगे, दैट इज़ योर 8th 9th, वहाँ पे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी. ओके. So from taxes they are getting money to implement our needs. You should be knowing about this. So this marks an end to our lecture. We have completed both the chapter number 6 and chapter number 7 simultaneously. किसी को भी किसी भी चीज़ में डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे. और ये वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे. सी आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि जिस दिन हमारी टीम देखती है कि वीडियोस में NCERT वीडियोस में 5000 से ज़्यादा व्यूज़ गए हैं, on that day itself we will be launching a personal mentorship program for you all. और वो भी फ्री रहेगा और उसमें भी जितने भी मैंने पर्क्स बताए हैं that team will implement in that also. But for that you need to increase the reach to the students. और वो रीच जो है वो आप ही के थ्रू हम कर सकते हैं. So let us end our lecture. We'll meet in the next lecture, that is your chapter number 8 and 9. And then 9th will be our last chapter of class 6 civics, and then we'll switch to history or economics. Okay, then revise and take care. We'll meet in the next lecture.